अब Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our course of cost accounting. Cost accounting के कोर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये आपके BBA के फोर्थ सेमेस्टर में है वो ऑफर किया जाता है और obviously we will be starting with the definitions of the cost accounting and basic cost concepts, cost analysis and so on. And slowly we will be entering into the cost accumulation procedures. Cost accumulation procedures को देखेंगे, how the costs are accumulated, gathered, calculated, और फिर we will be entering into how this cost information is used by management. So this will be a very interesting course, and let's start with the basic definitions and cost concepts. Before I go to the definition of the cost accounting, there is a very interesting theme and concept of management accounting or managerial accounting as well. And after defining these two terms, I will let you know what is the difference between cost accounting and managerial accounting, and what is the interrelationing between these two terms, and whether these can be used interchangeably or not, these are one and the same thing or not. All these questions will be dealt in shortly, inshallah. So first of all, I will start with the definition of management accounting or managerial accounting. Management accounting measures, analyzes and reports financial and non-financial information to help managers make decisions to fulfill organizational goals. तो मैनेजर्स, जैसे कि आप लोग अपने प्रीवियस कोर्सेज में मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि गेटिंग थिंग्स कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, तो थ्रू एंड विद पीपल. तो इसके अंदर जो है हम इस रोल देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग के इस ब्रांच का भी, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे. और इसमें इसका क्या किरदार है? इसका किरदार ये है कि इट मेजर्स, एनालाइजेस एंड रिपोर्ट्स. तो तीन इसके हो गए कि इसने मेजरमेंट भी करनी है, डाटा को एनालाइज भी करना है और रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करनी है. और इसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन यूज़ होगी, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यूज़ होगी. और शॉर्टली आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी इससे वाकिफ़ हो चुके हैं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 कोर्सेज पढ़ लिए होंगे आपने, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कोर्स पढ़ लिया होगा. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं. तो फर्दर ये है कि ये जो अकाउंटिंग है, इट इज़ अ मैनेजरियल टूल फॉर बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. और ये बिजनेस स्ट्रेटजी को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो मैनेजमेंट के काम आती है. दिस इज़ दी समवट some advanced aspect of the management accounting, in which these information is used for strategy formulation and implementation. इसके अंदर आप जो है वो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड की एग्जांपल समझ सकते हैं. माइट भी हम इस कोर्स के जो है एंड में इसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे. बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अगर आप चाहें तो अभी भी थोड़ा सा जाके उसको देख सकते हैं. इट इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ how business strategy is formulated and implemented with the help of managerial tool, managerial accounting tools or cost accounting tools such as balanced scorecard. Let's move on to the second definition. This is the definition of cost accounting. That is the very name of our course. So cost accounting measures, analyzes and reports financial and non-financial information related to the cost of acquiring or using resources in an organization. अगर आप गौर करें तो measures, analyzes and reports financial and non-financial information, यहाँ तक जो है वो previous definition managerial accounting की जो है वो बिल्कुल सेम है कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ. लेकिन आगे फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? फ़र्क यहाँ पड़ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग uses that information to related to the cost of acquiring or using resources. तो resources में जो है शामिल होते हैं materials,
डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह। तो इन सब रिसोर्सेज को हासिल करने की क्या कॉस्ट हैं उसको जो है एक्यूमुलेट करना, और इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से चल रही है या प्रोसेस कॉस्टिंग से चल रही है, जॉब ऑर्डर सिस्टम है या कंटिन्यूस प्रोसेस सिस्टम है या बैच सिस्टम है प्रोडक्शन का। इन सब सिस्टम्स में जो है वो क्या कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई हो रहे हैं, कॉस्ट किस तरीके से एक्यूमुलेट होती है, कैलकुलेट होती है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती है, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होती है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से। इस तरीके से जो है वो कॉस्टिंग मेथड्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सब जब कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, रिसोर्सेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने हासिल किए और फिर उनको यूज़ किया, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज़ वेरी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अब इन दोनों डेफिनेशंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हाउ दीज आर इंटर रिलेटेड। अब ये नेक्स्ट आप पैराग्राफ देख लें तो इससे इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा। टुडे मोस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स टेक द पोजीशन दैट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यानी कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन जो है, जो कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सेकंड थिंग इज वन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो देयरफॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज नॉट क्लियर कट। सो द ऑथर जिनको इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं, दिस इज चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन एंड ही इज अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उन्होंने इंटरेस्टिंगली जो है इस बारे में ये एक उनका वर्डिक्ट है कि देयर इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज नॉट क्लियर कट। इन दो टर्म्स के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके दरमियान कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड इन दिस बुक वी ऑफन यूज द टर्म्स इंटरचेंजेबली। तो इन दोनों टर्म्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग को और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं, और यानी कि ये एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम है। अब मैं इस बारे में आपको थोड़े से और कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये जो चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन है, इनका जो वर्डिक्ट है ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वो क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टेक्स्ट बुक एक लिखी है, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग अ मैनेजरियल एम्फेसिस। ठीक है, ये किताब जो है मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। क्या नाम है किताब का? कॉस्ट अकाउंटिंग अ मैनेजरियल एम्फेसिस। सो एक टेक्स्ट बुक उन्होंने ये लिखी। इसके साथ ही उन्होंने जो है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम कोर्सेज, और might be you say that someone more want to concentrate more on the management accounting aspect, तो एक और टेक्स्ट बुक जो है वो उन्होंने मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से भी लिखी। तो कंटेंट्स जो हैं वो दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और एक और इसमें बात क्लियर हो करके चलूँ कि हिस्टोरिकली हाउ दिस सब्जेक्ट इवॉल्व्ड, तो उससे आपको बात तकरीबन मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है। सो द सब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टेड टू फ्लरिश अराउंड द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जिस वक्त ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जब ये सब्जेक्ट जो है इवॉल्व हुआ, स्टार्ट हुआ, तो इसको वर्क्स अकाउंटिंग कहा जाता था। वर्क्स जो है वो प्रोडक्शन को भी कहते हैं। तो वर्क्स की टर्म जो है इस तरीके से, उसकी जो प्रोडक्शन या वर्क्स जो किए जाते थे उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इट वाज कॉल्ड वर्क्स अकाउंटिंग। इसी तरीके से इसे मिलती जुलती आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि इंडिया के अंदर अभी भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया में स्टिल उसका नाम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। तो पहला नाम इसका वर्क्स अकाउंटिंग हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें ट्रेंड्स चेंज हुए, इसके नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई, तो इसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाने लगा। और दूसरा फेज़ जो है 1950s 60s के अराउंड जो है ये इसका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग पड़ गया, और ये बहुत फेमस हुआ। अमेरिकन ऑथर्स मैट शुजरी, इसी तरह क्यूरी वगैरह ने बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स लिखी कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो कि डेकेड्स तक जिन्होंने
इस नाम के साथ जो है इस सब्जेक्ट में जो है वो ये चलता रहा। फिर लाइक 80s के अंदर कुछ ट्रेंड्स आए जब बैलेंस स्कोर कार्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और इस तरह की मॉडर्न कॉस्ट काउंटिंग टेक्निक्स जो इंट्रोड्यूस हुई। और इस एस्पेक्ट को कि नॉट ओनली cost accounting provides data regarding cost of acquiring and using resources, it was emphasized that this information is equally used by the management, और management इससे बहुत अहम काम लेती है, क्योंकि जब इसका नाम cost accounting था तब भी यही टेक्निक्स जो थी यूज़ होती थी, नाम cost accounting ही चल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट के यूज़ में आ रही है और उसमें टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वही कंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के रहे और मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने की वजह से इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग पड़ गया। और आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट अकाउंटिंग का लफ्ज़ जो है वो डिसअपियर होने लगा और आज सबसे फेमस जो ये सब्जेक्ट है वो इसी मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों ने दरमियानी राय इख्तियार की, लाइक कॉलिन ड्रोरे जो कि यूके यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक उनकी आजकल एक मौजूद है, दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उन्होंने एक दरमियानी राय इख्तियार की। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी इस चीज़ को एम्फेसाइज किया और इंस्टीट्यूट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रखा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया। ये भी एक दरमियानी राह है, ये बहुत अच्छी है। इसमें इस चीज़ को वाज़े किया जाता है कि दैट इज़ वन, दीज टू सब्जेक्ट्स आर वन एंड द सेम थिंग। तो उसके बाद इसमें और भी ट्रेंड्स आए लाइक अब जो है इस वक्त कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ ट्रेंड्स जा रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी फेमस। सो इस बात को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग and management accounting one and the same thing. So as far as the name of your course is cost accounting, so we will be using the term cost accounting more often. But अगर आप इन दोनों में फ़र्क करना चाहें, किसी वक्त आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में आ जाता है what is cost accounting, so you will have to say that cost accounting is the initial portion uh, of the cost accumulation procedures. It is related to cost of acquiring or using resources. And if you have to distinguish, अगर आपने इन दोनों को फ़र्क करना भी जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है और इट हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Anyhow, whatsoever is the name, we will be continuing the theme of the course with the cost accumulation, as well as we will be concentrating on how this information is being used by managers to make decisions. तो ये दोनों themes, cost accumulation का theme और management का theme कि it is being used by management for decision making, ये हम इसको साथ लेके चलेंगे. So let's move on to some basic concepts. So let's move on to the basic cost concepts. तो हम basic cost concepts की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है इसको हम एक और टर्म के ज़रिए भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस्ट एनालिसिस। यानी कॉस्ट कितनी किस्म की हैं, किसी भी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट जो हैं वो पुट की जाती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पता चलाना, उसमें से पता चलाना कि कौन सी कॉस्ट किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। सो दिस इज़ वी आर गोइंग टू understand the cost analysis, or we may call it as classification of manufacturing cost. So cost जो है there are three types of businesses, as you all know. One is manufacturing business, merchandising business and trading business. तो businesses की जो है वो तीन types हो गई। तो इनमें से फिलहाल जो है आप देख रहे हैं कि we are talking about manufacturing business. So merchandising and services business is not out of the scope of this course, but rather we are going to start with only manufacturing business. As you are already familiar with the merchandising and services business, that's all. That's why I'm going to start, or the textbooks on cost accounting start with the
manufacturing business or manufacturing cost. You can clearly see this is a product, this is a car, and there are three types of costs which are involved in the production. These are direct materials, direct labor, and manufacturing overheads. So let's move on to the definitions of these costs and how these are being classified. तो इसको हम देखते हैं कि ये कॉस्ट जो है किस तरीके से क्लासीफाई की जाती है। तो पहली कैटेगरी हमेशा याद रखने की बात, बहुत अहम बात, और इसको मैं बार बार रिपीट करूँगा आपके इस कोर्स में, कि कॉस्ट जो है जिस वक्त हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का ये एक हिसाब हो गया, एक तरीका हो गया, कि एक सिस्टम हो गया कि वी डिवाइड द कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेसेबल, इसको मैंने ब्रैकेट्स में इसके लिए दो अल्टरनेटिव टर्म्स मैंने आइडेंटिफाई की, लिखी, ताकि आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ट्रेस आप लोग करते हैं किसी को ढूंढना, पता चलाना, फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब आइडेंटिफाइबल और एट्रीब्यूटेबल, यानी आप किसी भी कॉस्ट को ये कह सकें कि ये फलां प्रोडक्ट है और इसके अंदर ये कॉस्ट इजीली ट्रेस हो रही है, आइडेंटिफाई हो रही है, या एट्रीब्यूट हो रही है। एट्रीब्यूट मीन्स कि इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये उस प्रोडक्ट का हिस्सा है, खासा है, और ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज डायरेक्टेड टू द स्पेसिफिक यूनिट्स प्रोड्यूस, दिस कॉस्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स है और डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स यूज्ड टू सपोर्ट, और ब्रैकेट्स में कहा गया कि यूज्ड विद इन, जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो कि डायरेक्टली यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का हिस्सा बनती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कार है, तो कार में अगर वो कार स्टील या आयरन से बनी हुई है, तो वो स्टील या आयरन जो है दैट इज द वेरी पार्ट ऑफ द कार, कार का वो बहुत अहम हिस्सा है। इसी तरीके से वेजेस पेड टू द एम्प्लॉइज हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन वर्क, और उस कार को प्रोडक्शन करने में जो वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो ये दो चीज़ें हो गई, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर। इसमें अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स raw materials that become an integral part of the product and that can be conveniently traced directly to it। वही चीज़ easily traced, conveniently traced, easily identifiable, easily attributable, easily traceable। तो अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इसमें शामिल है an engine, टायर्स, स्टील बॉडी, रेडियो इंस्टॉल्ड, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। वो चीज़ें जो कि आप इजीली उसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये नज़र आ रही हैं, ये आइडेंटिफाई हो रही हैं। नज़र आना ज़रूरी नहीं है, समटाइम कुछ चीज़ें हिडन होती हैं लेकिन वो इजीली ट्रेस हो रही होती हैं। उसकी प्राइस को आप उसमें जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसकी मज़ीद हम एग्जांपल्स में जाएंगे स्लोली, जब हम इसको कॉस्ट एनालिसिस मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लेके हम किया करेंगे, तो इंशाल्लाह उसको हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ भी मूव करेंगे। तो ये डायरेक्ट मटेरियल्स की एग्जांपल हो गई। इन द सेम वे डायरेक्ट लेबर, दोज लेबर कॉस्ट दैट कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कार्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसमें कितने वर्कर्स जो हैं वो फ़र्ज़ करें इन्वॉल्व होते हैं कार की प्रोडक्शन के अंदर, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि उसको असेंबलिंग करते हैं, उसकी प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, और उनकी जो है वेजेस एक मखसूस रेट के साथ, आवर्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इतने दिन तक 5 वर्कर्स लाइक 20 डेज तक एक ख़ास जो है वो प्रोडक्शन एरिया में काम करते हैं, तो ये इजीली ट्रेसेबल है क्योंकि उनकी वेजेस इजीली पता चलाई जा सकती हैं और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे जो है वो ट्रेस की जा सकती हैं। दैट्स वाई दिस इज डायरेक्ट लेबर। तो wages paid to automobile assembly workers. So I am closing today's lecture on direct costs। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज अपने सब्जेक्ट का कोर्स को डिफ़ाइन किया और उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हमने
जो है वो अंडरस्टैंड किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को देखा। और अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, और इट विल बी course will be continuing and it is a very interesting course. Hope you will enjoy.